क्या? हाँ, अभी स्टार्ट किया। आज का क्लास शुरू ही नहीं हुआ, कल का डाउट्स दिखा रहा हूँ। क्लियर ना? हाँ सर, हो हम्म गया। वो जो 500 शेयर्स है, 500 इंटू 20 रुपीज़, 10,000। 10,000 रुपीज़ का हमें हमारे पास पैसा है, वो एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट के समय। ओके, नाउ फॉर फ्यूचर। Forfeiture of shares. Here shares means equity share and preference share, both. Now what is forfeiture? When the company is issuing shares in when the company is issuing the shares and the collection method is in installments, it may so happen that few shareholders may not pay the allotment money or any subsequent call money. So when they do not pay the amount, what is this scenario called? Anyone? We have discussed this point. यस सर, जब शेयर होल्डर्स पे नहीं करेंगे तो उसको कॉल्स इन एरियर बोलते हैं सर। Very good. Calls in arrears. Calls in arrears. Calls in arrears. So ये calls in arrears जब होगा, company will intimate several times and the shareholder is not paying the money. So what can the company do? What is the remedy the company is having? The company can forfeit the shares. What the company can do? Forfeit the shares. This is called forfeiture. Forfeiture is nothing but confiscate. You are taking back their shares. Clear? This is called forfeiture of shares. Clear? And then reissue. Reissue of shares. Reissue of shares. When the company is forfeiting the shares, company will get back the shares. Company will not hold the shares with the company itself. It will again reissue the shares. This is called reissue of the forfeiture shares. Clear with the concept? Let us do one sum. You will have better idea. Question number 12. राकेश शर्मा पढ़ो. Question number 12. ओके सर। Read the question. ICC, Yeah. sir, can I read? ICC Limited forfeited 500 equity shares of rupees 10 each fully hold up, which were issued at a premium 20%. Hmm. Amount payable on shares were on applications rupees 2, on allotment rupees 5, on first and final call rupees 5. What is the face value of share? So 10 rupees. 10 rupees. Premium how much? So 20%. 20%. इधर देखो फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है,
प्रीमियम कितना होगा? 2 रुपीज़ होगा. 20% इन द सेंस 2 रुपीज़. नाउ अमाउंट वॉज पेएबल ऑन अप्लीकेशन 2 रुपीज़. एप्लीकेशन में 2 रुपीज़. अलॉटमेंट में कितना था? So 5 rupees. 5 rupees. Very good. First and final call. How much? 5 rupees. First and final call 5 rupees. फाइव फाइव 10 प्लस 2 12 रुपीज़. ठीक है. ओनली पढ़ो, आगे बढ़ो. Only application's money was paid by the shareholders in respect of these shares. ओके. 300 shares out of the above were reissued at rupees 9 per share fully paid. Pars journal entries for the forfeiture and reissue. फॉरफीचर एंड री इश्यू. टोटल 500 शेयर्स को फॉरफिट कर रहा है. ठीक है. 500 इक्विटी शेयर्स. ओनली एप्लीकेशन मनी वॉज पेड बाय द शेयर होल्डर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ these shares. ओनली एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ. ये ठीक है. 300 शेयर्स आउट ऑफ द अबोव वर री इश्यूड. री इश्यू में बाद में आएंगे. फर्स्ट लेट अस सी फॉरफीचर का एंट्री क्या होगा. ठीक है. फॉरफीचर का बात भी छोड़ दीजिए. पहले क्या एंट्रीज होते हैं हम वो लिख देंगे. देन यू विल अंडरस्टैंड द फॉरफीचर एंट्री बेटर. पहला क्या एंट्री होता है? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. बैंक अकाउंट डेबिट. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. कितना था? 500 शेयर्स इंटू 2000 रुपीज. क्लियर. सेकंड एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. कितना था? 1000 रुपीज. थर्ड एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना होगा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू और क्या आएगा? अकाउंट. शेयर्स आर इश्यूड एट प्रीमियम. Premium, securities premium. वेरी गुड राकेश शर्मा. वेरी गुड. सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. सिक्योरिटीज प्रीमियम बिकॉज शेयर्स आर इश्यूड एट प्रीमियम. प्रीमियम कितना था? 2 रुपीज है. 500 शेयर्स इंटू 2 रुपीज कितना होगा? 1000 रुपीज इधर होगा. ठीक है. इक्विटी शेयर कैपिटल में 500 इंटू, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो अलॉटमेंट में है वो समझना पड़ेगा. प्रीमियम अलॉटमेंट में है तो अलॉटमेंट मनी पर शेयर है 5 रुपीज. प्रीमियम 2 रुपीज निकालने से कितना है? 3 रुपीज. 500 इंटू 3 1500. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में 500 इंटू टोटल 5 रुपीज. अलॉटमेंट मनी इज 5 रुपीज. सो 2500. क्लियर. क्लियर. नेक्स्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. इधर तक एक पार्ट है. ये अलॉटमेंट का है. अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुआ तो नेक्स्ट एंट्री नहीं होगा. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट
पॉसिबल नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया ओनली एप्लीकेशन मनी हैज बीन रिसीव्ड. क्लियर? सो नेक्स्ट, फाइनल कॉल ड्यू एंट्री. इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. कितना था? हाउ मच? तो 500 शेयर्स पे और उसका अमाउंट रुपीज से 5 रुपीज. 5 rupees. Very good. 2500. 500 shares into 5 rupees. So these are the entries before forfeiture. Do you agree with me? Yes, sir. हाँ. Now see, company has received application amount. Company did not receive any allotment and call amount. So here the company has received this amount. So company has passed these due entries and waiting for the money. Now shareholders did not pay the allotment and final call. Now what you have to do, you have to reverse the entries. Reversal entry ही forfeiture होगा. Understanding? Understanding? रिवर्सल क्या करना है? इधर देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल में 1500 गया, इधर इधर भी इक्विटी शेयर कैपिटल में 2500 गया. इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना हमने ट्रांसफर किया था जो रिसीव नहीं हुआ? टोटल अमाउंट कितना है? टेल मी द अमाउंट. Sir, 3,500 total. सॉरी, 3000? 500 we didn't receive. नहीं, 1500 plus 2500. What is the total amount? 4,000, 4,000. 4000. 4000 is the amount. Yes or no? Yes or no? इक्विटी शेयर कैपिटल में 1500, 2500 प्लस इधर और एक और है एप्लीकेशन का 1000 रुपीज. टोटल 5000 रुपीज शेयर कैपिटल में गया था, which is relating to 500 shares. But when you are forfeiting the shares, the share does not exist. Yes or no? So transferring the amount for these 500 shares, you are transferring the amount to equity share capital. That is not correct, because the shares does not exist more, because you are confiscating the shares. It should not be in the share capital. So इधर दो शेयर कैपिटल देख लो. शेयर कैपिटल अकाउंट कहाँ पे है? इधर एक है, 1000 रुपीज. यू कैन सी हियर ऑल्सो 1500, हियर ऑल्सो 2500. टोटल 5000 रुपीज. बेसिकली the called up value. Till now you have called 10 rupees. Okay, till now you have called 10 rupees. When you are calling, you are passing the due entry. Yes or no? This amount you have already transferred to share capital. Indirectly this is also called money. So this application money, allotment money and first and final call, टोटल कॉल्ड अप वैल्यू कितना था? 10 रुपीज. सो 500 इंटू 10 रुपीज, इनडायरेक्टली 5000 है. ये सब मिलाने से भी 5000 आएगा. सो 5000 रुपीज टिल डेट यू हैव ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल. नाउ रिवर्स दैट एंट्री. सो क्रेडिट में इक्विटी शेयर कैपिटल 5000 है. नाउ टू रिवर्स व्हाट यू हैव टू डू? Debit, sir. Yes, debit. Now see the first entry, equity share capital account debit 5000 rupees. See in the book, equity share capital account, equity share capital account, equity share capital account 5000 debit. Next,
इधर सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट किया था 1000, yes or no, but you did not realize this 1000 rupees because shareholders did not pay the allotment money, so you have to reverse the securities premium also. Securities premium account 1000. Clear? I am just reversing the earlier entries. Okay, okay. Next, 2 equity share allotment. Sir, why allotment account you are debiting? Because this allotment, what is the subsequent entry after this allotment? Due entry, bank account debit to equity share capital, sorry, equity share allotment, but I did not receive the allotment money, so I have to cancel this temporary account. So cancelling this temporary account, here it is debit, so I am crediting now. So what is the amount? 2500. Clear? Next, equity share first and final call. Equity share first and final call. How much amount? 2500. Credit. 2500 credit. Clear? Now what is the balance amount here? What is the balance amount? 1000 rupees. 1000 rupees. That you should credit to equity share forfeiture account. Basically forfeiture account. Forfeiture account is 1000 rupees. Sir, what is this 1000 rupees? Forfeiture account, इसमें जो बैलेंस है इनडायरेक्टली प्रॉफिट टू द कंपनी. शेयर्स आपने इश्यू किया, शेयर्स आपने ले लिया, कंपनी टुक बैक द शेयर्स अगेन, बट कंपनी के पास उसका पैसा है. कितना पैसा है? ज्यादा. देखो इधर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इधर डेबिट हुआ, इधर क्रेडिट हुआ, जीरो हो गया. इक्विटी शेयर कैपिटल 1000, इक्विटी शेयर कैपिटल 1500, इक्विटी शेयर कैपिटल 2500. टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट है 5000, डेबिट है 5000, सब नलीफाई हो गया. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में है 2500, डेबिट है, इधर मैंने क्रेडिट कर दिया 2500, नलीफाई हो गया. सिक्योरिटीज प्रीमियम 1000 है, इधर क्रेडिट, मैंने डेबिट कर दिया ड्यूरिंग फॉरफीचर एंट्री, ये भी नलीफाई हो गया. इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इधर मैंने डेबिट किया ड्यू एंट्री में, फॉरफीचर एंट्री में मैंने क्रेडिट कर दिया, ये भी नलीफाई हो गया. बचा क्या था? चेक व्हाट इज लेफ्ट इन द एंट्रीज. बैंक का सर, सॉरी, बैंक रिलेटेड बैंक अकाउंट. वेरी गुड. बैंक अकाउंट 500 into 2 rupees 1000. You have issued the shares, you have taken back the shares indirectly, but you have forfeited this 1000 rupees as a punishment. शेयर्स आपने कॉन्फिस्केट किया, फॉरफिट किया है. आइडियली यू शुड रिफंड दिस एप्लीकेशन मनी टू देम. यस और नो? यस और नो? आर यू फॉलोइंग मी? Yes, sir. हाँ, ideally company should refund back this 1000 rupees, but company is not refunding the money back to the shareholders on forfeiture. Okay, so this 1000 rupees you will take to forfeiture account. 1000 rupees forfeiture account. Sir, this forfeiture account income hai ke? Yes, you can treat it as income, but capital income. It is a capital receipt. Okay. Sir, this is a capital receipt. Can I take to balance sheet liability side as a reserve? No. Wait till the shares are reissued. Okay. Wait till the shares are reissued. Why? Why should you wait? I'll explain. Till here, you have any doubt? Clear with the forfeiture entry?
If you have any doubts, you can raise in this forfeiture entry. Hello, sir. Yes. Sir, we have credited shared allotment account and share first and final call account. Sir, this one, can you explain, please? This part. Yes, sir. No, sir. In the forfeiture entry. Forfeiture entry. Yes, sir. We have Here. credited both the. Yes, sir. So I have credited equity share allotment and equity share first and final call. Why did I credit? That's your query? Yes, sir. Yes, okay. See here. This is the due entry, allotment due entry. After application money, we have received the application money. We have transferred the application money to equity share capital. This is the first step. Second step is allotment. This is allotment due entry. What will be the due entry? Equity share allotment account debit to equity share capital to securities premium. Here I have debited the equity share allotment account. Agree with me? Yes, sir. Huh. Next, ideally, what will be the entry? I'll receive the allotment money. So I'll pass bank account debit to equity share allotment. Yes or no? Yes, sir. Huh. But in the question, they have mentioned that we have received only application money. We did not receive allotment. We did not receive first and final call. That's the reason the company is forfeiting the shares. Because the shareholder is not paying the allotment and first and final call money, the company has decided to forfeit the shares, confiscate the shares. Do you agree with me? Okay, sir. Yes. So I did not receive the amount. So this is a temporary account, equity share allotment money. I have to cancel this account. So this is it in debit balance. This is having debit balance. In this entry, equity share allotment account I have debited. So to cancel this, I mean to nullify it, I have credited the equity share allotment account. Clear? Okay, sir. हाँ. Similarly, equity share first and final call account. This is the due entry. Equity share first and final call account debit to equity share capital. This is the due entry. Yes, Now I have debited the equity share first and final call account. To nullify it, I have credited equity share first and final call account. Clear? Yes, sir. I did not receive this first and final call also. If I would have, if I had received this amount, I would have debited bank account debit to equity share first and final call account. Understanding? So, sir, we will credit those accounts which money we have not received. Ideally, this is a temporary account. If we receive Yes, the sir. money, we will anyway cancel this temporary account by crediting bank account debit to equity share allotment. Yes or no? Yes, sir. Huh. Yes, sir. Now we are not receiving the amount. You should not keep this balance in this account. You have to make it null. I mean, you have to make it zero, because all Yes, sir. these 500 shares do not exist anymore. You're confiscating them. Yes, sir. Confiscating in the sense, you assume you're taking the shares from the shareholder and then you're burning it. Burning in the sense you're setting the shares on fire. Okay, assume that. Yes, sir. So whenever this 500 shares is not existing, any entries relating to that 500 shares should not have any balance. That's the concept. Yes, sir. Clear? So that's why here I am debiting. While calling the money, I am debiting, because this is due entry. While calling, I Yes. have to record in my books. So I am passing this due entry, but I did not receive the amount, so I have to nullify this. That's the reason. Clear till now? Any doubts? Yes, sir. Clear na? Yes, sir. Yes. Now keep in mind, in share forfeiture we have 1000 rupees for 500 shares. Just keep in mind. Okay. Now what is the next transaction that is happening in the company? Forfeiture हो गया. अभी next क्या था? Sir, now Sir, reissue. Sorry? Reissue. Reissue.
री इश्यू, वेरी गुड, री इश्यू कर रहा है. सो कंपनी आइडियली क्या करना है, तो शेयर्स लेते हैं, सोच लीजिए जलाते हैं, ठीक है, वो एज्यूम करके हमने एंट्रीज पास किया, लेकिन शेयर्स लिया था, वाई टू burn them or why to set them on fire, we are going to reissue. Okay, let we have, I mean the company has demand. Even now if we reissue the shares, shareholders will definitely subscribe. So the company wanted to reissue. How many shares the company is reissuing? Sir, 300. 300 शेयर्स. फॉरफिट किया था 500, लेकिन रीइश्यू कर रहा है 300. नोट दिस पॉइंट ऑल्सो. ओके, 300 शेयर्स, बट दे आर रीइश्यूइंग एट व्हाट प्राइस? 9 sir. 9 rupees. So this reissue is at discount. Do you agree with me? Yes, sir. Yes, because the face value is 10 rupees, but the company is reissuing at 9 rupees only. So this is a discount, issue at discount. Sir, you said earlier there is a provision where the Companies Act is prohibiting issue of shares at discount. But that act is not, I mean that section is not prohibiting any reissue of shares which are earlier forfeited. That section is not prohibiting. Okay, generally when the shares are forfeited, they can be reissued at discount. This is possible. Originally company should not issue shares at discount, but when the company is forfeiting some shares for some reason, then it can reissue those shares particularly at discount. Clear with the concept? Yes, sir. Ha. Now, issued at discount, what will be the entry? Assume lump sum. Okay, not installments, assume lump sum. What will be the entry? Lump sum in the sense total 10 rupees you should receive in one installment only. So directly one installment is nothing but application amount. Okay, now tell me what is the entry? You are receiving 9 rupees in lump sum. What will be the entry? Anyone? Sir, bank account debit. Bank account debit, very good. So forfeiture sales account debit No. Bank account debit, how much? 9. 9 rupees. So 300 into 9, how much? 2700. Till now it is fine. What will be the other amount? Normal entry, what will be the normal entry? Sir, discount account debit. Discount account debit, very good. Discount on issue of shares. Discount on issue of shares, how much? सर 1 रुपीज पे डिस्काउंट कर रहा है. हाँ, 1 rupees डिस्काउंट है, तो 300 into 1 rupee 300 rupees है. Yes or no? 2 equity share application account है कि नहीं? Then equity share application account debit to equity share capital. ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में 3000 होगा, ये 3000 शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेगा, है कि नहीं? दिस इज द आइडियल एंट्रीज. डू यू एग्री विथ मी? यस सर. हाँ. But here you can see one account which is called discount on issue. Yes or no? 300 rupees. This Yes, sir. discount on issue account is nothing but loss to the company. Debit balance as per nominal account. Debit or losses, expenses and losses. So debit account होने से P&L में जाएगा. P&L account debit side. Expense है, loss है. But this loss is relating to forfeited shares. Okay? forfeiture account में 1000 rupees है, याद है? Yes or no? Yes, sir. हाँ.
that is an income, this is a loss, 300. So instead of taking income 1000 rupees to P&L, 300 loss to P&L, set off this amount and take net amount to P&L. Understanding? So this discount on issue, this 300 rupees expense, you should not debit to discount on issue because you have some capital profit already. Profit, consider it as profit, okay, for understanding. कैपिटल रेवेन्यू छोड़ दीजिए, रेवेन्यू होने से ही P&L में जाएगा, कैपिटल होने से P&L में नहीं जाना चाहिए, बट एज्यूम इट एज प्रॉफिट, ओके. प्रॉफिट है, इधर एक्सपेंस भी है 300. सो फॉर फ्यूचर में ऑलरेडी 300 रुपीज, 300 शेयर्स का कितना अमाउंट है फॉर फ्यूचर अकाउंट में, बोलिए कोई भी. So Anyone? 1000 rupees. हाँ, 1000 rupees we have in forfeiture. 1000 rupees is for whole 500 shares. I want the amount for 300 shares. 300 shares का forfeiture account में कितना बैलेंस है? Anyone think? Forfeiture account में जो 1000 rupees है, that is relating to whole 500 shares forfeited. Now we are issuing only 300 shares. Now tell me the amount of 300 shares that is available in the forfeiture account. Anyone? Rakesh Sharma, how much? Sir, 300 ही होगा सर. 300, कितना? अंजना दास 300. कितना? 300, sir. Sorry? 300, sir. 300. No, 300 is wrong. सर प्रॉफिट पूछ रहे हैं क्या? Sorry? प्रॉफिट पूछ रहे हैं क्या सर? Not profit. I am not asking profit. फॉरफीचर अकाउंट में जो पहला एंट्री हमने फॉरफीचर एंट्री देखा था, उसमें टू फॉरफीचर अकाउंट 1000 रुपीज लिखा है. वो 1000 रुपीज इज रिलेटिंग टू 500 शेयर है सर. नो, 500 इंटू 2 रुपीज इज 1000 रुपीज. नाउ आई वॉन्ट 300 शेयर्स का प्रोपोर्शनेट अमाउंट कितना होगा फॉरफीचर अकाउंट में. So 600. 600. Yes, 600 is the correct amount. Sir, how? 500 शेयर्स का 1000 रुपीज है. 300 शेयर्स का कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो. 300 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 500. Indirectly 2 rupees per share. 2 rupees into 300, 600 rupees. Yes or no? Yes, sir. हाँ. Do you agree with me? 600 rupees is the profit relating to 300 shares. Do you agree with me? Yes, sir. हाँ. Now you have 600 rupees profit. On reissue, you are incurring 300 rupees expense. So what is the net profit? 300. 300. So you have to transfer the 300 to capital reserve. Capital reserve. What you have to transfer it to? Capital reserve. Now this is an ideal entry. Now actually I'll reframe this entry. See here. For future में actually I mean reissue में entry actually क्या होगा? Bank account debit. बैंक अकाउंट डेबिट 300 शेयर्स इंटू 9 रुपीज, ये 2700 होगा. ठीक है. टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के जगह में मैं डायरेक्टली इक्विटी शेयर कैपिटल में मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ. डायरेक्टली इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखो, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल. मैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को अवॉइड ही कर रहा हूँ. डायरेक्टली 300 इंटू 10 रुपीज क्या होगा? 3000 रुपीज होगा. ठीक है. फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट कर रहा हूं. नो, फॉर डिस्काउंट के जगह में क्या कर रहा हूं? फॉर फ्यूचर अकाउंट को डेबिट कर रहा हूं.
300 rupees into 1, this is the entry. सर आप क्यों फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ डिस्काउंट अकाउंट? बिकॉज यू आर ऑलरेडी हैविंग 600 rupees profit relating to that 300 shares which are reissued. Understanding? Understanding? Any doubt here? So instead of debiting the discount on issue account, I am debiting forfeiture account. Earlier we have credit of 1000. Now we are reducing 300 rupees from that. Any doubts till now? Any doubts till now? No, sir. Okay. No, sir. Now we have net 300 rupees profit. You have to transfer that to capital reserve. Forfeiture account debit to capital reserve. Sir, what is this capital reserve? This is capital profit. So I am transferring it to capital reserve. This capital reserve will not go to P&L. It will go to which account? Balance sheet. Not account, sorry. Balance sheet. ओके, बैलेंस शीट रिजर्व्स एंड सरप्लस होगा, उसमें ये जाके बैठेगा. क्लियर? Yes, sir. इधर कितना अमाउंट होगा? 300 होगा. 300. 300 होगा. सो इधर 300 ऑलरेडी लॉस को फॉरफीचर अकाउंट से सेट ऑफ किया था. बैलेंस जो 300 है वो हमने कैपिटल रिजर्व में भेज दिया. सर बैलेंस बोल रहा है, बैलेंस एक्चुअली 300 राइट ऑफ करने से 1000 से 700 होगा क्या? ये तो आपने 300 ही भेजा है. और कितना बचेगा फॉरफीचर अकाउंट में? फॉरफीचर अकाउंट में और कितना बचेगा? $700, sir. 700. Yeah, sir. 1000 रुपीज है क्रेडिट, मैंने डेबिट इधर किया 300, तो नेट क्रेडिट है 700. और मैंने इधर 300 डेबिट किया, तो नेट क्रेडिट कितना होगा? 400 होगा. अभी ये जो 400 है वो किसका अमाउंट है? $400 जो रुपीज है वो किसका शेयर्स का, आई मीन किसका अमाउंट होगा वो? That 400 rupees will be relating to the shares which are yet to be reissued. 500 टोटल शेयर्स है, 500 में से 300 इश्यू किया है, रीइश्यू किया है, 200 ऐसा ही पड़ा हुआ है. वो 200 रीइश्यू अभी तक किया नहीं है, तो इसलिए वो जो 200 शेयर्स का जो प्रॉफिट है वो कैपिटल रिजर्व में नहीं बेचना है, वो फॉरफीचर अकाउंट में ऐसा ही रहेगा. क्लियर? Yes, sir. मैं इधर लेजर अकाउंट दिखा रहा हूं, देख लीजिए एक बार. शेयर फॉरफीचर अकाउंट, पहले मैंने क्रेडिट किया था 1000 रुपीज. दिस इज द प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट. उसके बाद मैंने 300 डेबिट किया था डिस्काउंट के नाम पे. डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करना है, उसके जगह में मैंने शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट किया. 300 रुपीज जो प्रॉफिट है एक्चुअली रीइश्यू किया तो प्रॉफिट है, रीइश्यू कर लिया 300 शेयर्स, तो उसके ऊपर 300 शेयर्स का प्रॉफिट भी बुकिंग करना है. बाकी 200 शेयर्स का तो रीइश्यू नहीं किया मैंने. आई हैव नॉट रीइश्यूड 200 शेयर्स, सो आई शुड नॉट बुक प्रॉफिट ऑन 200 शेयर्स. सो दिस 600 इज रिलेटिंग टू 300 शेयर्स. बैलेंस रिमेनिंग इज 400. This is relating to 200 shares, which will be, I mean balance still उसमें रहेगा until further reissue of shares. Those 200 shares. Clear? Anyone has any doubt? This is the concept of forfeiture and reissue.
If anyone has doubt, you can raise. ये 1000 है 500 शेयर्स का, 500 में से 300 री इशू किया, 300 डिस्काउंट के नाम पे मैंने सेट ऑफ किया, 300 प्रॉफिट बुकिंग किया. प्रॉफिट कैसे है? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया है. 200 शेयर्स का जो 400 रुपीज है वो ऐसा ही पड़ा रहेगा. एनी डाउट? सॉरी, No, sir. क्लियर? कॉन्सेप्ट इज क्लियर? Yes, sir. I'll take a pause. If you have any doubts, you can raise. Forfeiture and reissue clear? Concept clear, right? Yes, sir. Okay. Let's do one more sum. Okay. I'll explain the entries. You can come to question number 20. Question number 20. Page number 42. Who will read the question? Subhadatta, read. Okay, sir. Yeah. X Limited issued 10,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees per share payable. Rupees 3 on application, including premium of rupees 1. Rupees 4 on allotment, including balance of premium and the balance in a call. Public subscribed for 12,000 shares. Excess application money was refunded. हाँ, One shareholder. Yes, stop till now. Excess application money was refunded. Issue कितना किया? 10,000 shares. Subscribe कितना किया? Sir, 12,000 shares. 12,000 shares. So पहला एंट्री क्या होगा? So applications money को receive करेगा तो रिसीव bank करता account है. में हाँ, एप्लीकेशन मनी रिसीव करता है. इश्यू किया 10,000 लेकिन 12,000 एप्लीकेशंस का मनी आएगा. तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. यस और नो? Yes, sir. हाँ, अमाउंट कितना होगा? व्हाट इज अमाउंट? सर यहाँ पे तो प्रीमियम 36,000. 36 कैसे आया था? फर्स्ट एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. 36 कैसे आया था? 12,000 शेयर सब्सक्राइब किया तो 3 रुपीज. हमको पहले 10,000 हमने इश्यू किया लेकिन एप्लीकेशन मनी बैंक अकाउंट में कितना है? 36,000 आया था. क्लियर? अभी एक्सेस एप्लीकेशन मनी को रिफंड किया. एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना था? सर 2,000. 2,000 एप्लीकेशंस का. तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. 2,000 शेयर्स में 3 रुपीज है. सो 6,000 रिफंड करना पड़ेगा. क्लियर? क्लियर विद द एंट्री? नेक्स्ट, एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल में.
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन इधर 36 है, इधर 6 नेट ऑफ हो गया, 30,000 है। 30,000 को इक्विटी शेयर में ट्रांसफर करो। हाँ, देख लो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 30,000 बचा है ना इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में, इधर 36 माइनस 6 30 बचा है, तो इसको इक्विटी शेयर कैपिटल में भेजना है। इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा कितना भेजेगा? फेस वैल्यू भेजेगा। फेस वैल्यू कितना था? 10,000 शेयर्स। फेस वैल्यू कितना है? सर सर फेस रुपीज वैल्यू इज वन ₹1। वन होगा सर। सॉरी ये फेस वैल्यू सर सॉरी सॉरी, कितना था अमाउंट? सर फेस वैल्यू विल बी ₹2। नहीं, एप्लीकेशन का टोटल अमाउंट रिसीव हुआ 3 रुपीज। इसमें टोटल फेस वैल्यू नहीं है, इसमें प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। कितना था? सर प्रीमियम ₹1 का था। सर 2 रुपीज से प्रीमियम। हाँ, नहीं 2 नहीं वो रुपीज नहीं टोटल प्रीमियम 2 रुपीज है, हाँ लेकिन एप्लीकेशन मनी में प्रीमियम अमाउंट कितना इंक्लूडेड है? ₹1। 1 रुपी। तो एप्लीकेशन मनी टोटल 3 रुपीज है, इसमें प्रीमियम है 1 रुपी। फेस वैल्यू कितना होगा? 2 रुपीज। 2 रुपीज होगा। तो इसमें 2 रुपीज 10,000 इंटू 2 रुपीज 20,000 इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा। सर बाकी 10,000 इंटू 1 रुपी कहाँ जाएगा? सर वो अलॉटमेंट में मिला है। सॉरी, सर सर बाकी का प्रीमियम अलॉटमेंट में मिला है। हाँ बाकी 1 रुपी प्रीमियम है ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 10,000 शेयर्स इंटू 1 रुपी 10,000। अभी देखो इधर सब नेट ऑफ हो गया कि नहीं? बैंक अकाउंट ये तो नेट ऑफ नहीं होगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 36 है, 6 है, 30 है, डेबिट 36 क्रेडिट 36 नेट ऑफ हो गया। ये बैंक अकाउंट हमने रिफंड कर दिया 6,000, 30,000 बैंक अकाउंट में रहेगा। 30,000 इधर डेबिट किया। कैपिटल में फेस वैल्यू भेजा है 2 रुपीज, 1 रुपी सिक्योरिटीज प्रीमियम में भेजा है। ठीक है, एंट्री समझ गए इधर तक? क्लियर टिल नाउ? यस सर। हाँ आगे पढ़ो एक बार सुबह। Sir, one shareholder, Mr. A, holding 50 shares, paid the call money along with the allotment. हाँ, And एक शेयर होल्डर 50 शेयर्स है उसके पास, वो कॉल मनी भी पे कर दिया था अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट है 4 रुपीज, कॉल मनी कितना होगा? एनीवन? क्वेश्चन में कॉल मनी बोला नहीं है। एनीवन कॉल मनी कितना होगा? गेस कर लीजिए। 5 rupees. 5 rupees. रुपीज। वेरी गुड राकेश शर्मा, वेरी गुड सुबह। 5 रुपीज होगा। तो ये बंदा क्या किया? अलॉटमेंट मनी जब पूछा था, ये अलॉटमेंट मनी के साथ कॉल मनी भी दे दिया, तो टोटल अलॉटमेंट के समय पे ये बंदा 4 + 5 9 रुपीज दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे पढ़ो। Sir, another Mr. B failed to pay allotment and call money on 30 shares. हाँ, बी These जो है, shares were for हाँ बी जो है एक शेयर होल्डर है, ये वो क्या किया? अलॉटमेंट के समय कॉल मनी भी पे कर दिया। इसको क्या बोलते हैं? calls in advance. वेरी गुड, कॉल्स इन एडवांस। अनदर शेयर होल्डर बी है, वो अलॉटमेंट मनी पूछा है तो वो अलॉटमेंट मनी पे ही नहीं किया, इसको क्या बोलते हैं? Calls in arrears. कॉल्स इन एरियर्स। वेरी गुड, नेक्स्ट। These shares were forfeited after the call and 25 of those were reissued at the rate ₹9 each. हाँ, फॉरफिट कितना शेयर्स किया था? 30 shares. वेरी गुड, 30 शेयर्स।
30 शेयर्स फॉरफिट किया बिकॉज मिस्टर बी को पूछा है अलॉटमेंट मनी, वो पे नहीं किया। कॉल मनी पूछा है, वो भी पे नहीं किया, तो इसलिए फॉरफिट कर लिया 30 शेयर्स। उसमें से कितना रीइश्यू कर रहा है? Sir, 25. 25. 25 shares. Very good. Reissue at what? Discount or premium? Sir, Sir, discount. 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 Yes, very good. Discount 1 rupees है। So first हम फ्लो वाइज आएंगे, हम इधर तक पहुंचा है एप्लीकेशन मनी का। नेक्स्ट हम का क्या, हमारा एंट्री क्या होता है? अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री। अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री देख लो। अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री देखो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना था? 10,000 शेयर्स ना। अलॉटमेंट मनी कितना है? 4 रुपीज, तो इधर 40,000 होगा। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? फेस वैल्यू जाएगा। फेस वैल्यू कितना था बोलो अलॉटमेंट में? फेस वैल्यू कितना है? सर 3 होगा प्रीमियम समय। 3 होगा। वेरी गुड मनीष, 3 होगा। सो 3 रुपीज 30,000 है, शेयर कैपिटल में जाएगा। जो बैलेंस 1 रुपी कहा जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम सर। सिक्योरिटीज प्रीमियम। वेरी गुड मनीष। सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 शेयर्स इंटू 1 रुपी, सो 10,000 रुपीज। 40 डेबिट 40 क्रेडिट। मैं नरेशन ये सब नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख दीजिए। हाँ, दिस इज द ड्यू एंट्री। अभी नेक्स्ट एंट्री क्या होता है? Sir, received and क्या? रिसीविंग। receiving. हाँ, रिसीट एंट्री। वेरी गुड। अलॉटमेंट मनी रिसीव करना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, यस और नो? तो बैंक अकाउंट में कितना आया था पैसा बोलो? 40,000. कितना? 40,000. 40,000 नहीं, कैसे? सर 36 था सर Sir, स्टार्टिंग का ना। 36,000. वो false हो गया. अलॉटमेंट मनी देख लो। मिस्टर ये क्या किया था? जब अलॉटमेंट मनी पूछा था, वो कॉल मनी भी पे किया, तब उसका तो अलॉटमेंट मनी आ ही गया इनडायरेक्टली। लेकिन मिस्टर बी 30 शेयर्स जो है उसके अलॉटमेंट मनी आया नहीं है, तो टोटल 10,000 शेयर्स है, उसको 30 शेयर्स निकालने से कितना शेयर्स होगा? Sir, 9,970. वेरी गुड। 9,970 शेयर्स है, इनटू कितना था? 4 रुपीज। समझ गया? अमाउंट कितना है बोलो? कैलकुलेटर में टाइप करो, अमाउंट कितना होगा बोलो? Sir, 39,880. यस, 39,880। आई एम रिपीटिंग। अलॉटमेंट ड्यू एंट्री लिखा है, हमने कॉल किया था अलॉटमेंट मनी पे करो भाई, सब लोग पे किया। मिस्टर ये क्या किया? कॉल मनी भी पे कर दिया, ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन मिस्टर बी है 30 शेयर्स, उसके पास 30 शेयर्स है, वो पे नहीं किया अलॉटमेंट मनी। तो अलॉटमेंट मनी हमको 30 शेयर्स में नहीं आया था, बाकी सभी शेयर्स आ गए इनडायरेक्टली। तो 9,970, 10,000 माइनस 30 इंटू 4, 39,880 पैसा आ गया। जो पैसा नहीं आया था उसको कॉल्स इन एरियर्स में डेबिट करो सीधा। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट कितना होगा? 30 शेयर्स इंटू 4 रुपीज, कितना था? 120। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 40,000। 40,000 इधर डेबिट हुआ, इधर क्रेडिट हुआ। पैसा हमको आया था सिर्फ 9,970 का। सर बाकी 30 शेयर्स का क्या होगा?
कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में जाएगा. मैंने ऑलरेडी नोट बोला था लास्ट क्लास में, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट विल ऑलवेज बी डेबिटेड. सर Clear? ये अलग से एंट्री लिखने से भी चलेगा ना सर? हाँ, अलग एंट्री भी लिख सकते हैं. अलग एंट्री क्या होगा, मैं इधर लिखता हूँ, देख लीजिए. मैं कंपाउंड एंट्री लिखा है इधर. ठीक है. अभी राकेश शर्मा पूछ रहे हैं अलग एंट्री लिख दो सर. मैं अलग एंट्री लिख के दिखा देता हूँ, देख लो. बैंक अकाउंट डेबिट 9,970 into 4 to equity share allotment 39,880. This is one entry. Calls in arrears account to equity share allotment 30 shares into 4 rupees 120. समझ गए? हाँ सर. हाँ. इनडायरेक्टली मैंने क्या किया, इस दोनों एंट्रीज में एक इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉमन है, तो इसलिए 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 40,000 किया है. डेबिट में 2 है, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कंपाउंड एंट्री. ठीक है. नेक्स्ट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गया. ठीक है. लेकिन अलॉटमेंट के समय एक और ट्रांजैक्शन हुआ था, क्या था वो? एनीवन गेस? सर कॉल्स इन एडवांस मिला था. हाँ, सुबह दत्ता, वेरी गुड. कॉल्स इन एडवांस है. कॉल्स इन एडवांस का भी एंट्री लिखना पड़ेगा ना. कॉल्स इन एंट्री एडवांस की एंट्री क्या होगा? पैसा एक्स्ट्रा आया था, जो एक्स्ट्रा आया था बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस. कॉल्स इन एडवांस का कितना शेयर्स में आया था? सर 50 शेयर्स पे. 50 शेयर्स है. कॉल मनी कितना था? सर 5 रुपीज था. 5 रुपीज, वेरी गुड. सो 250 रुपीज का एंट्री होता है. अभी अलॉटमेंट का सब एंट्रीज हमने लिख दिया. सर ये अलॉटमेंट का नहीं है ना, कॉल मनी है ना, लेकिन अलॉटमेंट के समय आपने रिसीव किया था कॉल मनी भी, तो अलॉटमेंट के समय भी एटलीस्ट एंट्री लिख दो कॉल्स इन एडवांस बोल के. ये कॉल मनी नहीं है, लेकिन कॉल्स इन एडवांस करके अभी लिखना पड़ेगा. एनी डाउट टिल नाउ? Any doubts till now? No? Next. Next entry क्या होगा? नेक्स्ट एंट्री क्या हुआ? अलॉटमेंट हो गया. नेक्स्ट क्या था? सर कॉल मनी का. कॉल मनी ड्यू एंट्री पास करना है. कॉल मनी का ड्यू एंट्री देखो, क्वेश्चन में बोला है बैलेंस इन ए कॉल. बैलेंस इन ए कॉल मतलब इसको ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोलते हैं. ठीक है. ये फर्स्ट कॉल है और बैलेंस बोला था, बैलेंस मतलब सभी इसमें आ जाएगा, तो फाइनल कॉल यही है. तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोलो कितना था? 10,000 into rupees 5. 10,000 into Rupees 5. very good. 10,000 shares into 5 rupees is the call money. 50,000 rupees. इसमें कुछ प्रीमियम नहीं है, सो डायरेक्टली टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000. दिस इज द ड्यू एंट्री. हमको इतना पैसा आना है बोल के लिख रहा है. ठीक है. नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट क्या एंट्री है बोलो? Receipt entry. सॉरी, Receipt entry. हाँ रिसीव करना है. रिसीव कर लो. बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा आया था? Sir 49,850 rupees. 49,000 850. कैसे?
पहले ये बोलो कितना शेयर्स में आएगा अलॉटमेंट मनी, बोलो सॉरी फाइनल कॉल कितना शेयर्स में आएगा? सर ये 9970 में आएगा। 956. नो 9970 में नहीं आएगा। क्यों? देखो 50. 10,000 शेयर्स है, उसमें 30 शेयर्स में नहीं आया था हमको अलॉटमेंट मनी, सो कॉल मनी भी नहीं आया था, तो हम 30 निकाल देंगे। 50 जो शेयर्स है वो ऑलरेडी पेमेंट कर लिया, अभी तो पैसा नहीं आएगा उसका। यस और नो? हेलो शुभ, Yes, sir. Sir, can you repeat please? Yes, sir. 10,000 शेयर्स में हमने कॉल कर लिया, ठीक है, लेकिन कॉल करने के लिए हम जा रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली इंटीमेशन दे रहा है 10,000 शेयर्स का, ठीक है, हमने इंटीमेशन दे दिया, लेकिन इंटीमेशन देने के पहले हमने देखा था 50, तो 50 शेयर्स का ऑलरेडी हमको मनी रिसीव हो गया ना, कॉल मनी। यस सर नो? 50 शेयर्स का ऑलरेडी कॉल मनी आ गया, तो अभी नहीं आएगा ना एडिशनली, क्योंकि हमने ऑलरेडी एंट्री पास कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस बोल के। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. डू यू एग्री विथ मी? ऑलरेडी 50 शेयर्स का कॉल मनी आ गया, तो इसलिए अभी फिर नहीं आएगा 50 शेयर्स में। 30 शेयर्स का तो ऑलरेडी वो पेमेंट ही नहीं किया, तो 10,000 माइनस 30 माइनस 50 कितना था? 10,000 माइनस 30 माइनस 50 कितना होगा? 9920. हाँ 9,920 शेयर्स में ही आएगा। कितना? 5 रुपीज। अमाउंट बोलो कितना होगा? Sir, 49,600. यस वेरी गुड, 49,600। ये पॉइंट क्लियर है ना? ये पॉइंट क्लियर है ना? Yes, sir. हाँ, अभी नेक्स्ट, ये जो कॉल्स इन एडवांस जो है उसको, कॉल्स इन एडवांस अर्लियर क्रेडिट है ना, कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करो। कितना था कॉल्स इन एडवांस में? कितना है? 50 शेयर्स इंटू 5 रुपीज, 250 होगा। सर क्यों डेबिट कर रहा है? ये तो 9,920 शेयर्स का है तो 50 शेयर्स का है कि नहीं? पहले हमने क्रेडिट किया था, अभी पहले क्यों कॉल्स इन एडवांस में क्रेडिट किया? तब ड्यू नहीं था। दोज अमाउंट इज नॉट ड्यू एट, दोज कॉल्स इन एडवांस, आई मीन दोज कॉल मनी इज नॉट ड्यू एट, बिकॉज हमने कॉल नहीं किया था, वो अलॉटमेंट के समय वो एडिशनली पे कर दिया, इसलिए टेम्पररी अकाउंट कॉल्स इन एडवांस में ट्रांसफर कर लिया। अभी तो ड्यू है, तो इसलिए वो जो क्रेडिट किया अभी डेबिट करो, कैंसिल कर लो। ये तो 9,920 सर क्यों कैंसिल करना है? कॉल्स इन एडवांस में क्रेडिट है ना, कैंसिल क्यों करना है? बिकॉज 50 रुपीज का भी अमाउंट जो है कॉल मनी वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा ना। यस और नो? अगर बैंक अकाउंट, अगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में तो ड्यू एंट्री में लिखो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर लिया, टोटल 10,000 शेयर्स का कॉल मनी, ठीक है। अभी ये जो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है इसको टोटल क्रेडिट करना पड़ेगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना था? 50,000, बिकॉज दिस इज ए टेम्पररी अकाउंट। ये डेबिट किया था, अभी क्रेडिट कर रहा हूँ 50,000। 50,000 देखो हमको कैश में आया था 49,600। बैलेंस क्या होगा? बैलेंस कॉल्स इन एडवांस से एडजस्ट करो और कॉल्स इन एरियर से भी एडजस्ट करो।
कॉल्स इन एरियर्स एडजस्ट नहीं, ये क्या बोलते हैं, 30 शेयर्स का पैसा आया नहीं है, 30 शेयर्स इंटू 5 कितना होगा ये, 150 होगा। क्लियर? कॉल्स इन एरियर्स का अलग से भी एंट्री मार सकता है, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मैंने अलग से नहीं दिया, मैं कंबाइन करके कंपाउंड एंट्री दे दिया। आई एम एक्सप्लेनिंग वंस अगेन, दिस इज ए ट्रिकी पॉइंट, देख लो अच्छे से। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू एंट्री में कितना डेबिट किया, 50,000। जब पैसा आएगा उसको पूरा क्रेडिट करना है 50,000। यस और नो? यस और नो, डू यू एग्री विथ मी? Yes, sir. हाँ, इधर डेबिट किया इधर क्रेडिट किया, क्रेडिट किया ठीक है, कब क्रेडिट करेगा, सब पैसा रिसीव होने से, लेकिन पैसा पूरा रिसीव नहीं हुआ, 9,920 का ही शेयर्स रिसीव हुआ है। सो ये 300 क्या होगा, आई मीन 30 शेयर्स में 5 रुपीज आया नहीं है, वो क्या होगा, कॉल्स इन एरियर्स होगा। इधर तक क्लियर है? कॉल्स इन एडवांस जो पहले 50 शेयर्स का जो 250 रुपीज क्रेडिट किया था, पहला एंट्री देखो, लास्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस 250, उधर क्रेडिट किया मैंने, इधर डेबिट किया। इसका मतलब क्या है, अभी एडजस्ट कर रहा है, जो पैसा अलॉटमेंट का टाइम, जो पैसा अलॉटमेंट के समय रिसीव हुआ है वो एक्चुअली अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं है, कॉल का अमाउंट है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो उस टाइम टेम्पररी अकाउंट कॉल्स इन एडवांस में टेल दिया, अभी जब एक्चुअली फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू था तब एडजस्ट कर रहा है वो पैसा, क्योंकि हम दोबारा पूछा नहीं है, हम क्या कर रहा है, वो पैसा जब तब रिसीव हुआ अभी एडजस्ट कर रहा है उसको, तो इसलिए उधर जो क्रेडिट हुआ अभी मैंने डेबिट किया, तो ये नलीफाई हो गया, तो इनडायरेक्टली इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 50,000 बन गया। क्लियर with this entry? Any doubts here? Rakesh Sharma, any doubt here? No, sir. Clear? Subhadatta, Anjana Das, Yes, sir. clear na? Yes, sir. Okay, very good. Now these are normal entries. Now coming to forfeiture entry. फॉरफीचर एंट्री, फॉरफीचर कितना शेयर्स कर रहा है, 30 shares. 30 शेयर्स, वेरी गुड। 30 शेयर्स में अभी तक इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना गया था, पूरा गया है, क्योंकि हम फाइनल कॉल तक एंट्री मार दिया ऑलरेडी, ड्यू एंट्री, तो इनडायरेक्टली 10 रुपीज चले गया, ठीक है, तो इनडायरेक्टली कॉल्ड ऑफ वैल्यू 10 रुपीज है। तो फॉरफीचर एंट्री देखो, पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सर इक्विटी शेयर कैपिटल क्यों डेबिट कर रहा है, आइडियली इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, फॉरफीचर मतलब क्या, शेयर एग्जिस्ट नहीं होगा, तो इसलिए फॉरफीचर शेयर कैपिटल अकाउंट से निकालना पड़ेगा, 30 रुपीज 30 शेयर्स का इक्विवेलेंट अमाउंट निकालना पड़ेगा, तो 30 शेयर्स इंटू 10 रुपीज कितना होगा, 300 होगा। क्लियर? इक्विटी शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितना है, 30 शेयर्स इंटू कितना रुपीज है, पहला एंट्रीज देखो अच्छे से, इक्विटी शेयर प्रीमियम कितना टोटल क्रेडिट हुआ था, बोलो मुझे, how much amount was credited in the securities premium account, refer the earlier entries fast. Sir, 2 rupees premium. 2 rupees premium 10,000 shares पे, yes or no? Yes, sir. हाँ, जो पहला सिक्योरिटीज प्रीमियम है एप्लीकेशन में जो रिसीव हुआ वो तो पैसा ऑलरेडी आ गया, यस और नो?
यस सर। हाँ, वो तो एप्लीकेशन के समय पे ही आ गया, लेकिन जो अलॉटमेंट के समय जो अब प्रीमियम अमाउंट कितना था, 1 रुपी है, लेकिन ये बंदा जो 30 शेयर्स होल्ड कर रहा है, वो बंदा अलॉटमेंट मनी पे ही नहीं किया। यस और नो? तो इनडायरेक्टली सिक्योरिटीज प्रीमियम में जो 1 रुपी है वो तो वो भी पे नहीं किया। यस और नो? डू यू एग्री विथ मी? सिक्योरिटीज प्रीमियम टोटल 2 रुपीज है, लेकिन 1 रुपी जो है उसमें से एप्लीकेशन के साथ ऑलरेडी रिसीव हो गया, उसका प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो अलॉटमेंट के समय जो 1 रुपी रिसीव होना चाहिए वो रिसीव नहीं हुआ है, तो इसलिए अभी सिक्योरिटीज प्रीमियम को रिवर्स करना है टू द एक्सटेंट ऑफ 1 रुपी, विच कम्स टू 30 रुपीज। क्लियर विद दिस डेबिट पार्ट? Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट 2 30 शेयर्स है। 30 शेयर्स में से हमको सिर्फ एप्लीकेशन मनी ही रिसीव हुआ है। यस और नो? यस सर। हाँ, इधर जो कॉल्स इन एरियर्स है 5 रुपीज कॉल्स इन एरियर्स है, इसका पहला एंट्री देखो, वो भी कॉल्स इन एरियर्स है, कितना था 30 इंटू 4 रुपीज, 30 इंटू 5 रुपीज, ये बहुत कॉल्स इन एरियर्स में गया था ना। यस और नो? हाँ सर। कॉल्स इन एरियर्स में 30 शेयर्स जो है उसका जो भी अलॉटमेंट अमाउंट है, कॉल अमाउंट है, ये दोनों एक्चुअली कॉल्स इन एरियर्स में हमने रिकॉर्ड कर लिया। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट हमने इधर एडजस्ट कर लिया। अभी कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट पड़ा हुआ है, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को रिवर्स कर लो। कॉल्स इन एरियर्स में अमाउंट कितना था टोटल? 2 कॉल्स इन एरियर्स, 30 शेयर्स इंटू अलॉटमेंट प्लस कॉल मनी, कितना था 4 + 5 9 रुपीज। 9 rupees. 30 इंटू 9 कितना होगा? 270 होगा। 270. हाँ, अभी लास्ट में क्रेडिट क्या आएगा? टू फॉरफीचर अकाउंट। टू फॉरफीचर अकाउंट कितना अमाउंट होगा? कितना अमाउंट होगा? सर 60। 60 कैसे है? 30 इंटू 2 रुपीज, 60 रुपीज। दिस इज द फॉरफीचर एंट्री। ये प्रॉफिट है इसलिए फॉरफीचर अकाउंट में भेज रहे हैं, ठीक है? क्लियर? आइडियली बुक में ये एंट्री दिया था, लेकिन मैं ये भी बोल सकता हूं कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 300, सिक्योरिटीज प्रीमियम टोटल 2 रुपीज ले लो, इधर 60 रुपीज आएगा, 360 होगा। कॉल्स इन एरियर्स 270 है, फॉरफीचर अकाउंट में 30 रुपीज इंटू 3 रुपीज एप्लीकेशन मनी, 90 रुपीज आएगा इधर। समझ गया? 360 360, ये भी एंट्री पास कर सकता है। सर फर्क क्या पड़ेगा मैं एक्सप्लेन करता हूं, देख लीजिए। जो 1 रुपी सिक्योरिटीज प्रीमियम एप्लीकेशन में रिसीव हुआ है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में पड़ा हुआ है, जो अलॉटमेंट में रिसीव हुआ है वो भी सिक्योरिटीज प्रीमियम में रिसीव हुआ पड़ा हुआ है। जो दोनों को पहले रिवर्स करो, बाद में फॉरफीचर अकाउंट में रिकॉग्नाइज करो, वो एक तरीका है। दूसरा तरीका है ओनली जो रिसीव नहीं हुआ अलॉटमेंट का उसको रिवर्स करो, इधर फॉरफीचर में सिर्फ 2 रुपीज रिकॉग्नाइज करो। समझ गया? फॉरफीचर मतलब फॉरफीचर अकाउंट में क्या होगा? प्रॉफिट होगा। जो एप्लीकेशन में हमने 3 रुपीज रिसीव किया है वो 3 रुपीज पूरा प्रॉफिट है। समझ गया? प्रॉफिट इनडायरेक्टली क्या होता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम और फॉरफीचर अकाउंट दोनों में जाएगा। 1 रुपी सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा,
बाकी 2 रुपया फॉरफीचर अकाउंट में जाएगा। ये दूसरा तरीका है, लेकिन बुक में आप लोग को दिया था ये एंट्री, तो बेटर फॉलो दिस एंट्री। समझ गया ना, कॉन्सेप्ट समझ गया? और डू यू वांट मी टू रिपीट दिस पॉइंट अगेन, राकेश शर्मा? Sir, हाँ। please repeat this point. सॉरी? Sir, please repeat this point, sir. हाँ, आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट अगेन। देखो अच्छे से देख लो। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट करना है, 30 शेयर्स इंटू 10 रुपीज, 300। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। टोटल सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना था? Sir, total तो 2 rupees था। 2 रुपीज है ना टोटल? हाँ सर। 30 इंटू 2 रुपीज, 60 रुपीज। 2 कॉल्स इन एरियर्स, 30 रुपीज इंटू कितना अमाउंट नहीं आया था? 4 + 5 9 रुपीज, ये तो 270 होगा। 2 फॉरफीचर अकाउंट। कंपनी को प्रॉफिट कितना था? रीइश्यू मतलब ये फॉरफिट करने से एप्लीकेशन मनी में जो अमाउंट आया था, अभी तक जो भी पैसा आया था सब प्रॉफिट ही है। अभी तक कितना पैसा आया था ये 30 शेयर्स में कंपनी को, बोलो? इस 30 शेयर्स में कंपनी कितना रिसीव किया अभी तक? सर, सिर्फ एप्लीकेशन तक रिसीव हुआ है। सॉरी? सर, सिर्फ एप्लीकेशन रिसीव हुआ है। हाँ, सिर्फ एप्लीकेशन रिसीव हुआ। एप्लीकेशन मनी कितना था? एप्लीकेशन मनी 3 rupees। 3 रुपीज। सो 30 इंटू 3 कितना होगा? 90 होगा। 270 + 90 360, 300 + 60 360। आइडियली दिस शुड बी द एंट्री, ओके। लेकिन बुक में क्या किया था? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 300, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 30 इंटू 1 rupee only, 30 rupees। 2 calls in arrears 270, 2 share forfeiture 60 rupees, 30 इंटू 2। मतलब जो प्रीमियम अभी तक रिसीव नहीं हुआ था उसको ही रिवर्स किया सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पे। सर अभी इनडायरेक्टली कंपनी को इस एंट्री में प्रॉफिट कितना था? स्टिल 90 रुपीज। कैसे है? 60 रुपीज शेयर फॉर फ्यूचर में है, 30 रुपीज सिक्योरिटीज प्रीमियम में है। क्योंकि पहला एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम जो एप्लीकेशन मनी के साथ रिसीव हुआ है उसको मैंने रिवर्स नहीं किया। इधर मैंने क्या रिवर्स किया? ओनली जो अलॉटमेंट मनी में जो प्रीमियम है उसको ही मैंने रिवर्स किया है। क्यों सर रिवर्स किया था? प्रीमियम अमाउंट नॉट येट रिसीव्ड उसको ही मैंने रिवर्स कर रहा हूं एज पर योर बुक। ये तो नॉर्मल ट्रीटमेंट है, ये भी फॉलो कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझ गया? डिफरेंस समझ गया? सर कोई एक मेथड करने से ही हो जाएगा? सॉरी सर एनी वन मेथड वी कैन चूज। हाँ, यू कैन चूज एनी वन, बट इट इज बेटर टू फॉलो योर बुक। बुक में ये दे दिया। सर ये ट्रीटमेंट क्यों फॉलो किया था? कम टू पेज नंबर, come to page number 26।
कम टू 26. ये राकेश शर्मा, इसको पढ़ो. अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर फॉरफीचर एंड रीइश्यू. सर 1 सेकेंड. सर जो वो आपने जो लास्ट पे शेयर फॉरफीचर का ₹2 लिखा है ना, तो वो समझ पे नहीं आ रहा सर. ये लास्ट वाला, हाँ सर. ये एक्सक्लूडिंग प्रीमियम है, ₹2. वो एप्लीकेशंस का. हाँ, एप्लीकेशन का. शेयर फॉरफीचर में क्या जाएगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में हमेशा जाएगा जो कंपनी फायदा हुआ है. ठीक है. अभी तक कंपनी को कितना रिसीव हुआ है वो फायदा होगा. कितना रिसीव हुआ है? एक्चुअली ₹3 रिसीव हुआ प्रीमियम के नाम पे, इंक्लूडिंग. एक्सक्लूडिंग मतलब ओनली फेस वैल्यू कितना रिसीव हुआ? ₹2. ₹2. हाँ, इसलिए मैंने ₹2 किया था. इधर अगर 30 बढ़ा दोगी ₹1 के नाम पे, इधर भी 30 बढ़ा दोगी, तब एंट्री सेम होगा. 30 60 प्लस 90, 60 90 ना. 30 60 30 कमाया था. क्यों कमाया था? आई विल एक्सप्लेन. गो रीड दिस एंट्री वंस. 26 पेज नंबर. सर पेज नंबर 26. हाँ, अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर फॉरफीचर एंड रीइश्यू. सर जो एंट्रीज दिया हुआ है वो एंट्रीज को रीड करना है क्या? हाँ हाँ, एक बार पढ़ लो. सर नंबर 1, ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, हाँ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट. 1 सेकेंड. शेयर कैपिटल अकाउंट कितना डेबिट करेगा? कॉल्ड अप वैल्यू. ठीक है. अभी तक कितना कॉल किया उतना. इनडायरेक्टली किया था. अभी तक कितना ड्यू एंट्री पास किया उतना तक रिवर्स करना है. तो ड्यू एंट्री पास किया तो तभी तो इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा, तो उसको रिवर्स करना है. तो इसलिए कॉल्ड अप वैल्यू बोला है. ठीक है. नेक्स्ट. सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ड्यू बट नॉट कलेक्टेड. हाँ, प्रीमियम ड्यू बट नॉट कलेक्टेड. इस सम में प्रीमियम ड्यू बट नॉट कलेक्टेड कितना था? इस पर्टिकुलर सम में टोटल प्रीमियम कितना है? सर ₹2. ₹2. कितना कलेक्ट हुआ है? ₹1. ₹1. कितना कलेक्ट नहीं हुआ है? ₹1. ₹1. सो इसलिए इधर सिक्योरिटीज प्रीमियम 30 शेयर्स इंटू ₹1 डेबिट कर रहा है आपका बुक में. समझ गया? हाँ सर. हाँ, तो इसलिए शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में 30 इंटू ₹2 ₹60 ले रहा है. दिस इज द ट्रीटमेंट एज पर योर बुक. बट आइडियली मेरे हिसाब से क्या ना होना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम में जो 30 शेयर्स का जितना प्रीमियम था हमने जो ऑलरेडी एंट्री पास कर दिया, टोटल 10,000 शेयर्स का हमने एंट्री पास कर दिया एप्लीकेशन के समय, अलॉटमेंट के समय भी 10,000 शेयर्स का पास कर दिया. तो इनडायरेक्टली 10,000 शेयर्स में 30 शेयर्स भी है, तो इनडायरेक्टली ₹2 जो ऑलरेडी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट किया था टोटल डेबिट करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा मेरे हिसाब से. तो ₹60 इधर रिवर्स करने से इधर फॉरफीचर में कितना अमाउंट जाएगा? आइडियली जो अमाउंट अभी तक कंपनी ने रिसीव किया है वो टोटल प्रॉफिट होगा कंपनी को, क्योंकि शेयर कॉन्फिस्केट कर रहा है, फॉरफिट कर रहा है. तो टोटल ₹3 प्रॉफिट जैसा रिकॉग्नाइज करो. समझ गए? हाँ सर. आपने बुक में क्या किया था? इधर टोटल 60 रिवर्स नहीं किया, 30 रिवर्स किया, तो प्रॉफिट भी कम बुक किया था. 30 इधर 60 ही बुक किया था. सर इनडायरेक्टली इस एंट्री में कंपनी को प्रॉफिट 60 ही है क्या? नहीं, ₹60 फॉरफीचर अकाउंट में पड़ा हुआ है, ₹30 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में पड़ा हुआ है. समझ गया? सुबह दत्ता समझ गया? ही इज नॉट रेस्पॉन्डिंग. राकेश शर्मा समझ गया? हाँ सर. हाँ, ये नेट इफेक्ट है. इधर 30 कमा दो, इधर भी Yes, sir. समझ गया ना सुबह? Yes, sir. हाँ, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू एक्सप्लेन दिस एंट्री इन डिटेल. दिस इज एज पर योर बुक.
ये फॉलो करने से ठीक है, ये भी फॉलो करने से ठीक है, लेकिन नोट लिख दीजिए, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम, टोटल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम जो क्रेडिट हुआ था वो आपने रिवर्स कर दिया फॉर फीचर में, ठीक है। तो इधर रिवर्स किया था, इनडायरेक्टली बुकिंग कर दिया प्रॉफिट शेयर फॉर फीचर के नाम पे, आपने 90 रुपीज़ प्रॉफिट बुकिंग किया। इधर क्या किया था, सिक्योरिटीज प्रीमियम में सिर्फ 30 रुपीज़ रिवर्स किया, फॉर फीचर अकाउंट में 60 रुपीज़ प्रॉफिट बुक किया, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में 30 रुपीज़ ऐसा ही पड़ा हुआ है, वो 30 प्लस ये 60 टोटल 90 रुपीज़ प्रॉफिट बुक किया। इधर भी प्रॉफिट 90 रुपीज़ है, उधर भी 90 रुपीज़ ही है। अभी री इश्यू का एंट्री है, देखो फास्ट। री इश्यू का एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, जल्दी बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट में कितना था, री इश्यू कितना कर रहा है पहले, सर 25 शेयर्स। हाँ 25 शेयर है, 25 इंटू 9 कितना होगा बोलो, 225 सर, हाँ 225। 225, वेरी गुड। डेबिट है, डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट आना चाहिए, बट मैं डिस्काउंट ऑन इश्यू नहीं करूंगा, क्या करूंगा, डेबिट किसको करूंगा, फॉर फीचर। फॉर फीचर अकाउंट, वेरी गुड, because this is reissue of forfeited shares, so I should not debit discount account, I am debiting forfeiture share account। forfeiture account debit कितना था, डिस्काउंट पोर्शन कितना होगा, 25 इंटू 1 रुपी, सो 25 रुपीज डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 225, क्रेडिट किसको जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर का एप्लीकेशन कर सकता है, बाद में फिर एप्लीकेशन टू कैपिटल ट्रांसफर करना पड़ेगा, नहीं है तो डायरेक्टली इक्विटी शेयर कैपिटल कर लो, 250, 25 shares into 10 rupees. This is the reissue account, yes or no? Sorry, this is the entry for reissue. Yes or no? Yes or no? Respond. Yes sir। हाँ Yes, sir. हाँ। Now one part is pending. What is that? ट्रांसफर सर। हाँ, प्रॉफिट ऑन रीइश्यू, नेट प्रॉफिट ऑन रीइश्यू कितना था बोलो, आपके बुक में टोटली प्रॉफिट फॉर फीचर अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ था, 60 रुपीज पड़ा हुआ है, 60, यस और नो, हाँ, एज पर बुक फॉलो कर लो। मेरा जो एंट्री है आप भी वो भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा जो एंट्री है 90 रुपीज पड़ा हुआ है, ठीक है। 90 या 60 रुपीज जो है वो कितना शेयर्स का है, सर 30 शेयर्स का। 30 शेयर्स का है, ये तो 30 शेयर्स का है, तो आपके बुक के हिसाब से फॉलो करो, 30 शेयर्स का 60 रुपीज है, तो 25 शेयर्स का कितना होगा, ₹60 is for 30 shares, 50 rupees. कितना, 50. समझा नहीं, 60। सर 50 रुपीज। हाँ 50 रुपीज होगा, तो 50 रुपीज प्रॉफिट है इधर, डिस्काउंट में कितना सेट ऑफ किया, 25 रुपीज, नेट प्रॉफिट कितना था, टोटल 30 शेयर्स फॉरफिट किया, 30 शेयर्स में टोटल प्रॉफिट कितना था, 60 रुपीज है, लेकिन री इश्यू किया 25 ही है, सो 25 शेयर्स का प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट होगा 50, तो 50 रुपीज में से फॉरफीचर सॉरी डिस्काउंट में कितना अमाउंट चले गया, 25 रुपीज, बचा कितना था, राकेश शर्मा बचा कितना था, सर 25 25 रुपीज, वो 25 रुपीज को कैपिटल रिजर्व में भेज दो, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, 25 दैट्स इट, दिस इज द एंट्री। वो 5 शेयर्स का जो प्रॉफिट है वो ऐसा ही रहेगा, 5 शेयर्स में कितना प्रॉफिट होगा, 10 रुपीज होगा, वो फॉरफीचर अकाउंट में ऐसा ही बैलेंस रहेगा,
अंडरस्टूड? Yes, sir. हाँ, मेरे हिसाब से 3 रुपीज़ प्रॉफिट है मेरे हिसाब से. सो 25 के लिए 75 होगा. 75 में से 25 अगर निकाल दोगे तो 50 रुपीज़ कैपिटल रिजर्व में जाएगा. क्लियर? ये मेरे हिसाब से एंट्री अगर करेगा तो. अंडरस्टूड? Yes, Yes, sir. sir. सॉरी, Yes, sir. क्लियर ना? Sir. दैट्स इट. दीज आर द एंट्रीज फॉर फीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स. मैंने 2 सम्स बोल दिया था. सम बाकी सम्स होमवर्क ले लो. कहाँ से है? 12, क्वेश्चन नंबर 12 मैंने बोल दिया. सो 13 से 19 तक होमवर्क ले लो और क्वेश्चन नंबर 21 भी होमवर्क ले लो. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 7 सम्स प्लस 21 8 सम्स होमवर्क है. ठीक है? क्लियर? कैन आई वाइंड अप फॉर टुडे? Yes, sir. या, थैंक यू. Thank you, sir. आज का क्लास थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब थोड़ा कॉन्सेप्चुअल समझना पड़ेगा. घर जाके एक और बार वीडियो रेफर कीजिए, समझ में आ जाएगा. ठीक है? Okay. राकेश शर्मा, क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 11 यू कैन स्टे बैक. No, sir. नो, राइट? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 11 ना, एक मिनट. क्वेश्चन नंबर 11 में जो मैंने जो एंट्री बोला था उसमें अलॉटमेंट 10,000 एक्स्ट्रा पैसा आया था ना. हाँ सर. हाँ, वो अमाउंट भी कंपाउंड एंट्री बना दिया फर्स्ट एंट्री में. हाँ सर, वही. हाँ, इसलिए आपने कंफ्यूज हो गया होगा. वो हाँ, सर. अलग अलग आप लिख दीजिए, एक एक एंट्री लिख के जाइए, आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है? हाँ सर, ठीक है. हाँ, ठीक है. थैंक यू. थैंक यू. हाँ, Thank you, sir. थैंक यू.